Hello and welcome back to Prep Alpine, the next generation UPSC institution. We are continuing with our high yield UPSC series where we discuss some of the most important topics which have the maximum probability of being asked in your UPSC prelims and mains examination. And these topics help you get an edge over the other aspirants in your upcoming exams. Apart from this, we also provide these high quality PDFs for your study purposes, for your self study purposes, and these can be downloaded completely for free from our Telegram channel. So, today's topic is a very interesting topic when it comes to international relations. And you know that international relations is a favorite area of UPSC and it continuously asks questions on it, especially when it comes to international trade or trade agreements. Then these are the core areas of UPSC. So today's topic is about reciprocal trade and the changing nature of trade deals. So we all know that FTA होता है, CECA होता है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स होते हैं, कस्टम्स यूनियन होता है, बट इन द रिसेंट टाइम्स हमने देखा है कि टैरिफ वॉर्स हो रहे हैं. जो कंट्रीज हैं वो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रही हैं. तो इन दैट सिनारियो व्हाट हैज हैपेंड कि अब ट्रेड डील्स जो है वो रेसिप्रोकल ट्रेड डील्स होते हैं एंड टुडे वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट दीज रेसिप्रोकल डील्स आर. सो इन द रीसेंट टाइम्स वी हैव सीन that the world has entered into a different phase of globalization. Especially after 1990s, we saw that the world was entering towards free trade agreements with different countries. And World Trade Organization, previously the GATT or the General Agreement on Tariffs and Trade, used to govern it. But now GATT and WTO have somehow lost their relevance in the international context, and the countries are shifting more towards global trade systems based on their own principles. So first of all, let us understand the evolution of the trade agreement. So this trade agreements are foundationally based on the General Agreement on Tariffs and Trade, that is GATT, and the WTO. The WTO was the successor of GATT, which was formed in 1995. So the core principles that govern and trade between any two countries, the first one is the most favored nation principle. So what happens is कि जैसे हमारे स्कूल में होता था कि हमारे कोई दोस्त होते थे तो बर्थडे वाले दिन हम उनको ज्यादा चॉकलेट्स देते थे. तो ऐसा ही होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में भी कि अगर कोई आपका फ्रेंड है, कोई कंट्री के साथ आपके अच्छे रिलेशंस हैं पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, तो आप चाहेंगे कि उनके साथ आपके इकोनॉमिक रिलेशंस जो हो, अगर ट्रेड रिलेशंस हो, वो भी ज्यादा बेटर हो. तो बाकी नेशंस जो है उनको बुरा लगेगा, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा. तो गैट ने क्या किया या डब्ल्यूटीओ ने क्या किया कि कोई भी ट्रेड कंसेशन जो आप किसी एक डब्ल्यूटीओ मेंबर को देते हैं, that should be extended to all other members. For example, India and Bangladesh have a very amicable clause and they start ट्रेडिंग एट अ फिक्स टर्म्स कि हम जो है सारा ट्रेड एक दूसरे के बीच से ही करेंगे. तो अभी पाकिस्तान को बुरा लगेगा. अब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, एवरीवन इज अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ. तो जो कंसेशंस इंडिया बांग्लादेश को देगा, सेम कंसेशंस इंडिया जो है वो उसको पाकिस्तान को भी देना पड़ेगा. सो दैट इज द मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल that prevents selective favoritism based on political or economic pressure. The second principle is rules based and binding commitments कि जो भी trade commitments होती हैं they are legally binding. You cannot just evade it on your own choice. और disputes जो होंगे they should be resolved through a structured dispute settlement mechanism, and that is where the catch comes, that the present dispute trade resolution mechanism of WTO is not on place. There are several issues, internal issues, that have stalled the dispute trade regulation mechanism of the or the dispute settlement mechanism of the WTO. So recently we have seen that the nature of trade governance has changed. Initially, the trade was focused on rules-based system governed by WTO and the principle of so-called multilateralism. But in the recent times, it has shifted to power-based bargaining. Whichever countries are powerful, whatever power they have, on the basis of that, आप मेरे को you scratch my back, I scratch your back principle पे reciprocal trade agreements हो रहे हैं. So from MFN, we have moved to strategic leverage. From binding commitments, we have moved to trade tariff threats. We have seen that the USA is imposing tariff threats all over the world. And from
institutional oversight by WTO, we have moved to WTO plus conditions and selective concessions. But now let us understand कि what are the kinds of trade agreements that the WTO allows. क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अगर किसी के साथ भी आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं करेंगे, अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन, तो WTO हैज अलाउड कंसेशन, और ये जो कंसेशंस हैं ये गैट के आर्टिकल 24 के अंडर दिए जाते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर प्रीलिम्स. सपोज इन प्रीलिम्स यू आर आस्क्ड कि व्हाट डज द गैट आर्टिकल 24 डील विथ. So you will have to understand that it allows exceptions for free trade areas and custom unions. So first of all, the free trade areas, what are these? So these, whatever members are there, they reduce the tariff substantially among all the members, and each member maintains its own external tariffs against non-members. For example, India, Bangladesh, Bhutan, Nepal, all agree to form a free trade union या फ्री ट्रेड एरिया. तो इनके बीच में जो ट्रेड होगा वो सब्सटैंशियली कम रेट पे होगा, लेकिन किसी बाहर वाले बंदे के साथ अगर ये लोग ट्रेड करेंगे तो उसमें चारों इंडिपेंडेंट है कि अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं. देन कम्स कस्टम्स यूनियन. यहाँ पे इंटरनल जो ट्रेड होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये चार कंट्रीज मिलकर के कस्टम्स यूनियन बनाती हैं तो इनके आपस में जो ट्रेड होगा वो कंप्लीटली फ्री होगा. लेकिन अगर बाहर किसी बंदे के साथ ट्रेड करना है तो चारों मिलकर के एक कॉमन टैरिफ लगाएंगे, एंड द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज द यूरोपियन यूनियन. So now, what are the conditions for legitimacy? The agreement must cover most of the trade. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप गुड्स में ट्रेड कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रेड कर रहे हैं. जितना भी ट्रेड होगा उसका मोस्टली जो है वो इस अग्रीमेंट के अंडर कवर होना चाहिए. ओवरऑल बैरियर्स जो है आउटसाइडर्स के अगेंस्ट रेज नहीं हो जाना चाहिए कि हाँ हमने आउटसाइडर्स से बिल्कुल ही ट्रेड नहीं करना है, इस तरीके के कंडीशंस हमने इम्पोज कर दिए. और जो भी चीजें हैं वो WTO को नोटिफाई करना होगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट आर अग्रीमेंट्स ऑन रेसिप्रोकल ट्रेड. सो ये एफटीए से डिफर करते हैं बहुत सारे वेज में. सबसे पहले तो ये आपको गैट में या WTO के अंडर लिखे हुए नहीं मिलते हैं, दे आर नॉट फॉर्मली नोटिफाइड. सेकेंडली, इनमें रेसिप्रोसिटी यानी यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, ये जो नेगोशिएशंस होते हैं वो एक दूसरे से हमको कितना बेनिफिट मिल सकता है इस पर डिपेंड करता है. यू गिव मी कंसेशंस, आई विल गिव यू कंसेशंस. इफ यू आर नॉट गोइंग टू गिव मी कंसेशंस, सेम गोज फॉर दिस. और ये हमने देखा है इन द रिसेंट टाइम्स यूनाइटेड स्टेट्स के रिस्पेक्ट में. एंड लास्टली WTO प्लस कमिटमेंट्स. यहाँ जो ऑब्लिगेशंस हैं वो WTO के बियॉन्ड भी रूल्स हो सकते हैं. कंट्रीज जो है वो आपस में मिलकर के रूल्स बना सकती हैं. ये डिजिटल ट्रेड को कवर कर सकती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को, कि आपको अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसमें ये चेंजेस करने होंगे तब तो जाकर के हम आपके साथ ये करेंगे, या नेशनल सिक्योरिटी अलाइनमेंट को भी कवर कर सकती है. So now we have shifted from rules to leverage, and this is a structural shift. That initially the world order which was governed by rules, now it is being governed by leverage. Whichever country offers you more leverage, you are intentionally aligned towards that country economically. So we have shifted from multilateralism to bilateralism, कि different countries के साथ ट्रेड करने से बेटर है कि आपस में दो कंट्रीज जिनकी बनती है वो एक दूसरे से ट्रेड करें, ताकि पावर पॉलिटिक्स जो है वो रिड्यूस हो जाए. एक थर्ड कैटेगरी ऑफ ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो एमर्ज हो रहा है. एंड लास्टली दिस हैज रिड्यूस्ड ट्रांसपेरेंसी. सो व्हाट आर द की कंसर्न्स? क्योंकि अगर अभी तक सुनने में तो यही लग रहा है कि जो रेसिप्रोकल ट्रेड अग्रीमेंट्स या RTAs हैं वो ठीक है, मतलब ओके, इफ यू बोथ द कंट्रीज आर ऑन एमिकेबल टर्म्स, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? So the first problem that comes is the WTO obligations जो है उनके साथ ये conflicting है. जो अभी WTO की commitments हैं वो अभी कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हैं रेसिप्रोकल ट्रेड अग्रीमेंट से, जिसकी वजह से बहुत सारे डिस्प्यूट्स और रिटेलिएटरी मेजर्स जो है वो हो सकते हैं. ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, ट्रेड वॉर्स हमको देखने को मिल रहा है. इसके अलावा MFN का जो प्रिंसिपल है वो भी डाइल्यूट हो रहा है. तो जो कोर लॉजिक था WTO के फॉर्मेशन का कि फ्री ट्रेड जो है वो पूरी दुनिया में हो सके, वो कहीं ना कहीं अभी हमको डाइल्यूट होता हुआ नजर आ रहा है. एंड देन जो पॉलिसी स्पेस है वो भी कम हो रहा है, क्योंकि WTO प्लस प्रोविजंस जो है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को रेस्ट्रिक्ट कर देती है कि आप आपस में, मतलब कोई भी कंट्री जो है वो सॉवरेन होकर के अपना डिसीजन, अपना इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अपना नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो फ्रेम नहीं कर पाएगी. डिजिटल गवर्नेंस, डेटा रेगुलेशन, इन पर भी जो ये रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाए जा सकते हैं. दिस विल फाइनली लीड टू द फ्रैगमेंटेशन ऑफ द ग्लोबल ट्रेड.
that the global trade will lose coherence among the around the world. So what is the implication for India? So considering US if as a prime example, क्योंकि यहाँ पर ही हमको सबसे ज्यादा रेसिप्रोकल ट्रेड अग्रीमेंट का जो सिनेरियो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है, तो सबसे पहला अगर हम पोटेंशियल बेनिफिट्स की बात करें तो यूएस मार्केट में हमारा जो एक्सेस है वो इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यूएस अगर अपना मार्केट हमारे लिए खोलेगा तो दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग। और फिर यहाँ से हमारे एक्सपोर्ट्स जो है उनको भी बढ़ावा मिलेगा और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आएगा, बट ऑब्वियसली देयर आर स्ट्रेटेजिक रिस्क। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया इज अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ, तो हमारे लिए ये एक लीगल कंपैटिबिलिटी जो है वो जरूरी होनी चाहिए कि अग्रीमेंट्स जो है वो डब्ल्यूटीओ के ऑब्लिगेशंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ताकि फ्यूचर डिस्प्यूट्स या रिटेलिएटरी मेजर्स जो है डब्ल्यूटीओ की तरफ से ना लगाया जाए। सेकेंडली, इंडिया को अपनी पॉलिसी ऑटोनॉमी जो है वो मेंटेन करके रखनी होगी, फिर चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, हमारे डिजिटल गवर्नेंस से रिलेटेड हो, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हमारा एग्रीकल्चर मार्केट, हमारे जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं, सॉवरेंटी के स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारे जो है वो हमारे हिसाब से डिजाइन होने चाहिए, किसी और के इकोनॉमिक या पॉलिटिकल प्रेशर से नहीं। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न इज द जियोपॉलिटिकल बैलेंस, कि हमारे अगर हम यूएस के साथ इस तरीके का अग्रीमेंट करते हैं तो फिर सिमिलर डिमांड्स जो है वो हमको ईयू, यूके और गल्फ स्टेट से देखने को मिलेंगे, बट ये जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो हमारे को उनके साथ भी पैरेलली नेगोशिएट करके चलना होगा और ओवर डिपेंडेंस किसी एक सिंगल ट्रेड पार्टनर पर अवॉइड करना होगा, सो दैट हमारा जो ट्रेड, हम जो प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं ऑफ मल्टीलैटरलिज्म रिमेन्स द कोर ऑफ आवर ट्रेड अग्रीमेंट्स। सो नाउ अगर इतना हमको समझ में आ गया, तो एक बेसिक चीज जो अभी तक हमको समझ में आ रही है वो ये है कि डब्ल्यूटीओ जो कि एक इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, कहीं ना कहीं उसका जो लेजिटिमेसी है, उसका जो अगर आप देखें कि उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो अभी डाइल्यूट हो रही है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनली अब डब्ल्यूटीओ उतना ज्यादा पावरफुल नहीं रहा, एंड द मेजर रीजन बिहाइंड इट इज कि डब्ल्यूटीओ या कोई भी यूएन ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि मैक्सिमम फंडिंग जो है वो वेस्ट से मिलती है, सो दीज आर मोर वेस्ट अलाइंड ऑर्गेनाइजेशन, और अगर वेस्ट चाहे तो इन ऑर्गेनाइजेशन की जो इंस्टीट्यूशनैलिटी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। तो डब्ल्यूटीओ में अभी हमको देखने को मिल रहा है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट जो बॉडी है, एपेलेट बॉडी, वो कंप्लीटली नॉन फंक्शनल हो चुकी है, उसके इलेक्शंस को लेकर के वहां पर डिस्प्यूट चल रहा है, नेगोशिएशंस जो पहले से चल रहे हैं वो काफी टाइम से स्टॉल्ड है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमको बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं, जैसे जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं वो बुलीज की तरह एक्ट कर सकती हैं टू द स्मॉल इकोनॉमीज। हमारा जो रूल्स बेस्ड गवर्नेंस में हमारा कॉन्फिडेंस था वो कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है, जो छोटी छोटी कंट्रीज जिनको ये अश्योरिटी थी कि कुछ ना कुछ जो डब्ल्यूटीओ है वो करेगा, वो कहीं ना कहीं अब कम हो गया है। एंड लास्टली, इंस्टीट्यूशनल इरोजन हमको देखने को मिल रहा है, नॉट ओनली विद डब्ल्यूटीओ बट ऑल्सो विद डब्ल्यूएचओ, यूएन एंड मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस। So what is the way forward? So first of all, we need to reinforce transparency. जितने भी agreements हैं उनको WTO को notify करने की जरूरत है, and countries को आपस में बैठ के बात करने की जरूरत है कि हमारे लिए WTO की प्रिंसिपल्स से अलाइन करना कितना ज्यादा जरूरी है। सेकेंडली, हमको WTO में ही रिफॉर्म लाने की जरूरत है, जो भी डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है उसको रिवाइव करने की जरूरत है, जो स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट अगर होंगे तो किस तरीके के होंगे, उनमें क्या लिमिटेशंस होंगे, ये सारा क्लैरिफाई करने की जरूरत है, और जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर अभी डब्ल्यूटीओ में रूल्स नहीं है, जैसे डिजिटल ट्रेड, डिजिटल गवर्नेंस, ये सब, या डेटा प्रोसेसिंग वगैरह से रिलेटेड, तो ये सारे रूल्स जो है वो वहां पर बनने चाहिए। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में लीगल डिफेंसिबिलिटी जो है हमको वो बरकरार रखनी होगी, ताकि अगर डब्ल्यूटीओ इन फ्यूचर हम पर कोई एक्शन लेता है तो हम लीगली उसको डिफेंड कर सके, और एम्बिगुअस कमिटमेंट्स जो है उनको हमको अवॉइड करना होगा, अपनी पॉलिसी ऑटोनॉमी जो है वो बरकरार रखनी होगी, एंड मोर ओवर मल्टीपल पार्टनरशिप्स, जैसे यूएस के साथ साथ ईयू हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ हमको जो अपना नेगोशिएशन है वो कंटिन्यू रखना होगा, ताकि यहाँ पर जिस तरीके से हम चाइना पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं एज अ सिंगल ट्रेड पार्टनर, वैसे ही हम किसी और पे भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। सो दिस रेसिप्रोकल ट्रेड अग्रीमेंट्स जो है वो सिर्फ एक टेक्निकल इनोवेशन नहीं है, बट उससे कहीं ज्यादा है, और अगर ये कंटिन्यू रहा तो आगे चल करके फिर से
कंट्रीज जो है वो आपको ब्लॉक्स में, अलग अलग ब्लॉक्स में बढ़ती हुई नजर आ जाएंगी, जो भी पावरफुल कंट्रीज है। फॉर एग्जांपल अभी हमको यूएस और चाइना का अलग अलग ब्लॉक देखने को मिल रहा है, एंड इफ दिस कंटिन्यूज तो फिर से कुछ कंट्रीज जो है वो यूएस की तरफ चली जाएंगी और फिर से कुछ कंट्रीज जो है वो चाइना की तरफ चली जाएंगी। तो जिस बाइपोलर वर्ल्ड से निकल करके अभी हम मल्टीलैटरलिज्म की तरफ बढ़ रहे थे, वर्ल्ड हमारा फिर से बाइपोलर की तरफ चला जाएगा। सो वी नीड टू इंश्योर कि जो भी रिफॉर्म्स जरूरी हैं, खास करके मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में, यूएन में, आईएमएफ में, डब्ल्यूटीओ में, वर्ल्ड बैंक में, वो सारे जितनी जल्दी हो सके हो। इंडिया नीड्स टू इंश्योर कि ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं वो इसमें डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे ना रहे, क्योंकि जब तक हम एक लीडर का रोल यहाँ पर नहीं लेंगे तब तक इंडिया की बातों को भी कोई सीरियसली नहीं लेगा। तो टू एंश्योर कि आवर पोजीशन इन द इंटरनेशनल स्पेस इज रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि हमारे तरफ से एक बहुत बड़ा ट्रेड का अमाउंट है जो हम कंट्रोल करते हैं, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो हमारे पास है। तो उसको इंश्योर करने के लिए, इसके सिग्निफिकेंस को इंश्योर करने के लिए, वी मस्ट पुश टुवर्ड्स द रिफॉर्म्स इन द multilateral institutions. So that's it for this video. If you want more such content, please subscribe to the channel and keep watching Prep Alpine. Thank you.